बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज दया बेन सूरत से हमारे साथ जुड़ी हैं। अति प्यारी सखी, अभी अभी कुछ टाइम पहले ही प्रफुल्ला बेन से उनका जुड़ाव शुरू हुआ। किस प्रकार धनी जी उनको लेकर आए और कैसे ये भोली सी सखी रोती है जार जार पिया जी के लिए। आंखों से आंसू टपकने लगते हैं पिया जी की बात सुनते ही। प्रफुल्ला बेन के चरणों में भी प्रणाम करना चाहूंगी और साथ ही साथ दया बेन से मिलवाने के लिए उनका धन्यवाद। आज हम उन्हीं के मुखारबिंद से सुनते हैं कि किस प्रकार दया बेन इधर जुड़े। गुजराती हर सुंदर साथ को अब समझ में आने लग गई है। हमें तो सिंधी समझ में आने लग गई है सुंदर साथ जी, गुजराती तो पूरी दिल में उतर जाती है। जी दया बेन, आप बताइए किस प्रकार सुंदर साथ परिवार में आपका आना हुआ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बड़ी बात तो जो सखी, પેલા તો અમે સસરાલ ને આવી ને ત્યાં તો બધા વૈષ્ણવ હતા. પછી એને કોઈ સેવા કે એવું કઈ હતું નહીં. તો મેં કીધું હાલો મારે તો કઈક આવું થોડુંક કરવું જ છે એવો અંદર આમ હતું. તો પછી મેં બ્રહ્મ સંબંધ લીધું. અહીંયા સુરત આવી રૂમ લઈને આવી ત્યારે પછી મેં બ્રહ્મ સંબંધ લીધું. પછી બધા એ લોકો ભાગવતનું જ્ઞાન વધારે હતું ને ભાગવત વાંચતા તો હું એ સબ કથામાં જાતી. 10 થી 4-5 વર્ષ મેં ભાગવત સાંભળ્યું. પછી લાલો પધરાવ્યો મેં ઘરે સેવા કરતી. પછી મને એમ થયું કે હાલો હવે આ કઈક પ્રફુલ્લાબેન અહીંયા આવી પછી જીવનદીપમાં રહેવા આવી તો હું પ્રફુલ્લાબેનની સાથે બેઠી બધી વાત કરતા. હું એને પૂછું કે ભાઈ આ પ્રણામી એટલે શું, કોઈ મંદિર છે માતાજીનું મંદિર કે આ શું છે? હું એવી વાત કરતી એની સાથે. તો ઈ કે ના, ઈ મને વિગતવાર પહેલેથી બધું બહુ સમજાવ્યું. 2 વર્ષ સુધી મને એને બધી આ વાત કરી તો મને આમ વિશ્વાસ લાગ્યો કે સારું, બહુ સારું છે. પછી મને એને બધી વિગતવાર વાત કરતા હતા કે તમે આ ભાગવતમાં કઈ રીતે સેવા કરો, શું વાત આવે બધી. હું એને મારા ભાગવતની વાત કરું કે મને ક્યાંય વાત મળતી નથી આવી. તમે આ નવતમ કથા કરો એવી વાત મને ક્યાંય મળતી નથી. આ બધું જે ભાગવતમાં છે પણ કોઈ આવી આપી કોઈ ખોલતું નથી. આવી રીતે કોઈ મને વાત જ નથી કરી. એ બધી મને એને પહેલેથી દેવચંદ્રજીની નાની ઉંમરથી છે આમાં આવ્યા તારતમ મંત્ર લીધો એ બધી મને એને વાત કરી આવી રીતે. પછી મેં કીધું સારું હાલો, મને આ વિશ્વાસ થોડોક આવી ગયો કે આ કઈક છે ખરું નવીન. પછી મને 2 વર્ષ સુધી મેં આ એની પાસે બધું સાંભળ્યું અને વિશ્વાસ આવી ગયો તો મેં વાણી પધરાવી પછી પ્રફુલ્લાજી પાસે. हेलो जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब मैं हमारे प्रवीण भाई जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो जो आपने बताया वो 2-3 मिनट में सारांश रूप में हमें बताएंगे। प्रणाम जी प्रवीण भाई जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। जो प्रणाम। दीदी ने बताया उसमें ऐसा था कि वो शुरू में तो भागवत का ही पठन कर रही थी, उसको मालूम नहीं था। प्रफुल्ला दीदी के साथ वो शुरू शुरू में बात करती थी तो अपने वितक के बारे में और ये वाणी कुलजम स्वरूप के बारे में बताती थी तो बोलती थी कि इसमें तो और इसमें वो भागवत में और इसमें बहुत डिफरेंस है। इसमें वो जो मैं पढ़ा हूँ, मैं जो सुनी हूँ, वो उसमें आपके बारे आप जो बोल रहे हो इससे थोड़ा डिफरेंस हो रहा है। तो ये कुछ समझ में नहीं आता था। फिर प्रफुल्ला दीदी ने 2 साल तक उसको वो क्वेश्चनों का वो समाधान किया, उसने जो पूछा उसको सभी उसने बताया। फिर उसको ईमान आया बाद में। फिर उसने वाणी उस प्रफुल्ला बहन के थ्रू उसके घर में उसने पधराई। अरे वाह, बहुत सुंदर सेवा। और सुंदर साथ जी, इतना प्यारा देखिए कैसे
श्रीमद् भागवत पढ़ते हुए उनके हृदय में कैसे ये आया कि जो मैं सुन रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा अलग है, तो ये ज्ञान थोड़ा सा अलग है। कैसे धनी जी ने उनको अपनी ओर खींचने का ये रास्ता अपनाया, और इतनी प्रेम में भीगी हुई ये सखी है ना सुंदर साथ जी। आगे का भी अपनी घटनाएं बताइए, कैसे कैसे और भीतर धनी जी आपको लेते गए। दया बेन। પ્રફુલ્લાજી દીદી વાત કરે અને મને એવું લાગે કે આ બહુ નવતમ કથા છે, બહુ સારું લાગતું હતું. અને એક આ હરિદાસજીનો પ્રસંગ મને બહુ સારી રીતે સમજાવ્યો, એટલે મને બહુ આનંદ થયો. બસ એટલે અત્યારે તો મને કોઈ હજી તો વાણીની કોઈ સખી ઓલું આ ફાવતું નથી. આ તો જાતથી એમ થમ અંદર મને ક્યાંય સત્સંગમાં ને એવું કઈ સાવા મળતું નથી. અને એમને વાણીનું મંથન કર્યા કરું અને સાંભળ્યા કરું. પ્રફુલ્લા દીદી પાસે જાવ ક્યારેક મને ઈ બધી વાતો કરે, બધી આ જે સત્સંગમાં ગયા હોય એની વાત કરે બધી. બસ ઈ જ મને અનુભવ છે, બીજો મને કાંઈ આમાં અનુભવ હતો નહીં, પણ ધીમે ધીમે મારામાં દ્રઢતા આવતી જાય છે, એટલે મને આનંદ આવતો જાય છે. બસ મને બીજી તો કાંઈ એક આવડતી નથી, ચોપાઈ તો મને મોઢે આવડતી નથી. એક સેવા પૂજા બસ ઈ મનથી મોઢે આવડી છે. બાકી હજી બીજું બહુ મને કાંઈ એમાં હજી અનુભવ. પ્રફુલ્લા દીદી પાસે ચર્ચા સાંભળું અને આનંદ લઉં છું. શરૂ કરું છું હવે, મારે પગથિયું ચડું છું પેલું. હવે કઈ રીતે મારે આગળ આવવું એ તમે મને બધા સાથ આપશો એટલે હું આગળ આવી જાય. બીજી તો મને આમાં કાંઈ હજી તો બહુ અનુભવ નથી થતો. સત્સંગ કે એમાં જવાનું થાય તો મારા હસબન્ડ છે ને એને આવું ઓછું ગમતું, એટલે કઈ હું જાતી નહીં સત્સંગમાં. પ્રફુલ્લા સાથે બેહીને બસ ઈ વાત કરી લઉં. અને અમારે મારા કાકાજી સસરા છે ને ભગત છે, બ્રહ્મચારી છે. ઈ અમને આ ધ્યાનમાં કઈ રીતે બેસવું એ બધી પદ્ધતિ રોજ એની પાસે બેસતા, એટલે ઈ મને અમને વાત કરતા. એની પાસેથી અમે શીખા અને ધ્યાનમાં બેસતા. 4 વાગ્યાથી 6 વાગ્યા લગી બેહી, ક્યારેક ટાઈમ હોય તો કલાક બેહીએ, 2 કલાક બેહીએ, પણ અમને એમાં કાંઈ ટપો પડ્યો જ નથી. આમ અંધકાર એવું જ લાગે છે. એટલે હવે તમે આ રીતે સિતવની કરવાનું પ્રફુલ્લાજીએ શીખવાડ્યું છે, એ રીતે હું કરું છું. સિતવની રોજ કરું, વાણીનું મંથન કરું. जी બસ એવું बहुत ફાવે છે. सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ तक की बात प्रवीण भाई जी बताएंगे, उन्होंने नोट करना शुरू कर दिया ताकि कुछ भूल ना जाए। अति सुंदर सेवा भाई, हमेशा डेडिकेशन से करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। वो दयाबेन ने बताया कि वो हरिदास का प्रसंग प्रफुल्ला बेन से सुन के मुख से वो बहुत प्रभावित हुई, और वो सत्संग में कहीं जाने मिलता नहीं था उसको, क्योंकि सत्संग में उसके घर से उसके हस्बैंड को भी इतना वो पसंद नहीं था। तो प्रफुल्ला बेन के पास ही बैठ के पूरी सुनती थी, समझती थी, और वो सेवा पूजा का भाव ले रही थी और वाणी का भाव ले रही थी। बाकी तो घर में बैठे बैठे सेवा पूजा ही करती थी वो। उसके जो हस्बैंड को पसंद नहीं था, और दूसरा वो जो प्रफुल्ला बेन पास जाके पूरा सीखा हुआ है। दूसरा उसका जो काका जी ससुरा, वो भी भक्ति में थे और वो भी बहुत भजन भाव में रहते थे, मगर कुछ उसमें भी उसके जाने से, उसमें भी रहने से उसको कुछ मालूम नहीं पड़ा कि ये वाणी का जितना जो कुछ अभी देखा उसके अगेंस्ट में तो वो कुछ नहीं था वहां। वो ऐसा बता रही है ऐसे। अरे वाह, देखिए सुंदर साथ जी, कैसे प्रफुल्ला बेन को मैंने देखा है सुंदर साथ जी, वो अपना काम माया का करती रहती हैं साथ साथ। जैसे कि अगर वो बागे सिल रही हैं, माया का काम नहीं है ये तो धनी जी की सेवा है, पर वो कुछ और सिल रही हैं, बागे भी साथ में सेवा भी कर रही हैं, सिल रही हैं। वो भी एक काम नहीं करती, वो डबल काम करती हैं। सखियों को किसी ना किसी को साथ में बुला लेती हैं, और वो काम मशीन पे अगर कुछ कर रही हैं, करते करते भी सखियों को ब्रह्मवाणी पिलाती रहती हैं वो। तो दिल पिया जी को देना और इंस्ट्रूमेंट की तरह हाथ चलते रहना, ये मैंने प्रफुल्ला बेन से सीखा था इस बार। अति सुंदर। अब हम आगे की और, आपको क्या लगता है दया बेन, किस प्रकार आपको धनी जी ने खींचा प्रवाही होते हुए? आप श्री कृष्ण जी से पहले से प्रेम करते होंगे, क्योंकि आप तो श्रीमद् भागवत पढ़ते थे, तो उनसे तो प्रेम रहा होगा, है ना?
ભાગવત તો ભાઈ 10 વર્ષ સાંભળ્યું, પણ આ નવતમ કથા તો પ્રફુલ્લાબેને કીધી ને ઈ જ આ દિલમાં ચોટી ગઈ છે. જે કીધું ને ઈ બહુ સરસ એને મને આગળ લઈ આવ્યા છે પ્રફુલ્લાબેન જ. મને આ उनकी કોઈ જાતનો આમાં કઈ અનુભવ જ હતો નહીં. આ બીજાને કરી जी, उनकी पूरी मीठी बत्तियों में देखिएगा, गिनिएगा प्रफुल्ला बेन का नाम कितनी बार आता है। अति सुंदर। जी, आप और अपने अनुभव बताइए, अब कैसा लगता है? सूरत की सारी सुरताएं मिलकर आती हैं, आप सभी इतना आनंद लेते हैं, और अनुभव शेयर कीजिए हमारे साथ। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? नहीं तो वो प्रफुल्ला बेन आपको ट्रांसलेट कर रहे होंगे। સુરતની સુલતાને મૂડી તો મને આ આનંદ આવ્યો, આ મેળવ્યો. સખીઓ મળે છે ને એની વાત. સખીઓ હારે સત્સંગમાં જવાનું ક્યારેક મળે છે, બહુ નહીં, પણ આમ અતિ આનંદ આવે છે. વાણી ક્યારેક ક્યારેક સાંભળું છું તો મને મજા જ આવ્યા રાખે છે. રાજજીની વાતો સાંભળું. એક રાજન સ્વામી આવ્યા, એનો એક સત્સંગ સાંભળ્યો તો મેં અહીંયા હરે કૃષ્ણમાં અમારે આવ્યા ત્યારે. એને જોઈને તો હું મને તો રાજજીનું જ સ્વરૂપ લાગ્યું હતું. પ્રફુલ્લાજીને એમ કહું, રાજજીનો સત્સંગ હતો. હું રાજન સ્વામીનું નામ જ નહોતું આવડતું, રાજજી જ આવડતા હતા. એને જોઈને જ મને એટલું એમ થતું હતું કે આ તો ભગવાન જ છે. મને એટલો આમ દિલમાં આનંદ આવતો હતો. એને જોઈને મને એમ થયું કે હવે મારે વાણી તો પધરાવી જ લેવી છે. 2-4 દિવસ થયા હતા, મેં પ્રફુલ્લાજીને વાત કરી દીધી કે મને બહુ આનંદ આવ્યો આ સ્વામીજીને જોઈ, અને મને એમ થાય છે કે આ રાજજી જ છે. એટલો મને દિલમાં આમ ઓલું થતું. એના સત્સંગ સાંભળો, જોશના દીદીનો સત્સંગ સાંભળીને આમ વધારે ઓલું થતું. પછી મેં વાણી પધરાવી. जी, तो उन्होंने पहचान लिया है सुंदर साथ जी कि कहाँ से वो गुंजायमान हो रही है, किस तन से उनको वो गुंजायमान सुनती हुई दिखाई दे रही है। उसके अंदर बैठे मूल स्वरूप, आवेश स्वरूप, उसके अंदर बैठी हुई शक्ति को हमने पकड़ लेना है। अति सुंदर। अभी आप और सोच के रखिए, तब तक प्रफुल्ला बेन के साथ आपको और क्या क्या बताना है, क्या क्या अनुभव आपको बताने हैं। तब तक हम प्रवीण भाई जी के साथ चलेंगे और अगली बार ये सेवा हमारे सुरेश गोहिल भाई करेंगे। प्रणाम जी, जब भी गुजरात के सुंदर साथ आएंगे। जी प्रवीण भाई जी। प्रणाम जी। अभी वो दयाबेन जी ने बताया कि वो 10 साल तक तो भागवत सुनती ही रही, मगर उसमें कुछ उसको मिला नहीं। और अभी जब ये प्रफुल्ला बेन के साथ बैठ के वो कुलजम स्वरूप की वाणी में जो प्रसंग एक 1 बाय 1 ऐसे सुनती रही, तो उसको बहुत ही कुछ मिला, बहुत सीखने को मिला उसमें। सखियों में वो कभी बहुत ज्यादातर जाती नहीं थी मीटिंग में, फक्त प्रफुल्ला बेन के पास जब टाइम मिलता था वो 2 साल तक वहां जाके उसने वो सब सीखा है, उसमें उसको बहुत मजा आया। फिर राजन स्वामी जी का एक प्रसंग सत्संग हुआ था, वो सत्संग सुन के उसको इतना अच्छा लगा, तो राजन स्वामी का नाम ही नहीं, वो तो राजी बोलती थी। मैं तो राजन नाम ही नहीं याद आता है, मेरे को राजी याद आता है, सचमुच में वो भगवान है। तो वो राजन स्वामी की वो सत्संग सुन के वो बहुत प्रभावित हो गई। और दूसरा वो ज्योत्सना बेन और दूसरी सब सखियों से बात करके वो जो प्रसंग अभी तक चर्चा, जो वाणी चर्चा है, वो सुन के उसको बहुत आनंद आ रहा है और ऐसे ही आगे बढ़ रही है। और अभी तो उसने घर पे वो वाणी भी पधरा दी है और अभी वो पूरी लग गई है इसके। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। आप ये बताइए, वाणी मंथन करके और जो आपने सोचा है अभी वो बताइए पहले, फिर मैं आपसे पूछूंगी। जी दया बेन, प्रणाम जी। जो आप बताना चाह रहे हैं वो बताइए पहले। હવે તો એટલો દજાલ આવી ગયો છે ને કે અમારે હવે સાથે બેસી નથી શકતા અમે. મારે ને પ્રફુલ્લાબેનજીને બહુ વધુ સંપર્ક હતો, રોજને માટેનો હતો, પણ હવે અમારાથી બેહાતું નથી. એટલું અમારે ઓલું રાજ્ય શું અમારી માથે એવું આવરણ નાખી દીધું કે અમારાથી કાંઈ થાતું નથી એવું મારાથી. નકર અમે સાથે સખ્યો, હું સત્સંગ કરું અહીંયા, મેં મારા ઘરે બોલાવું સખ્યોને, મને આમ બહુ આમ આનંદ આવતો હતો. પણ હવે અમારાથી આ નથી થતું, એનું શું આ કારણ હશે? અમે હવે સાથે બેસી वाणी मंथन तो आप कर रहे हैं, तो क्या आपने चितवन करनी भी शुरू कर दी है? आप इस बारे में सोचिए तब तक।
प्रवीण भाई जी हमें बताएंगे अभी आपने क्या कहा था। प्रणाम जी भाई। अति सुंदर ये कोऑर्डिनेशन चल रही है, ये तो कभी सोचा ही नहीं था सुंदर साथ जी, इतनी प्यारी सेवा। जी भाई। वो बोलते हैं कि पहले तो अभी कुछ बीच में दज्जाल आ गया है। कौन सा दज्जाल आ गया है मालूम नहीं। कि वो दज्जाल ऐसा है कि वो प्रफुल्ला बेन और दया बहन जी साथ में बैठ के भी बातचीत बहुत कम कर सकते हैं वो। और राज्य को प्रार्थना करते कि क्या कारण राज्य ऐसा हुआ है कि अभी हम नहीं बैठ सकते हैं। तो उसका रीजन वो राज्य को पूछ रही है कि कुछ कारण तो ऐसा है कि अभी हम नहीं कर सकते जो कर रहे थे वो। तो उसके लिए वो राज्य को बोल रहे हैं कि कुछ साथ में बैठे और कैसे बैठे। तो दज्जाल कुछ बोला, अभी इतना बताया। जी बहुत सुंदर। तो सुंदर साथ जी, ट्रांसलेशन में भी उतना ही किया जा सकता है जितना उन्होंने बताया है। अब प्रवीण भाई तो नहीं बता सकते, तो राजी करें हम सब की ये प्रार्थना, ये दज्जाल आपको कसौटी पर खरा सिद्ध करके अपने आप ही मुख उधर करके चला जाए और आपकी वो बैठकें फिर से शुरू हो जाएं, जैसे पूर्व पहले बहते थे अभी भी बहा करें। तो क्या आपने चितवन भी करनी शुरू कर दी है दयाबेन? शायद धनी आपको और अंदर अपने अंदर उतारना चाहते हैं। जी। ચિતવની કરું, પાણી વાસું, વિતક વાસું, બધું શરૂ જ રાખવું છે એમ તો મનથી. શિંગારની, હા શિંગાર વાસું છું. શિંગાર તો મને બહુ જ મજા જ આવે છે, એનું મંથન કર્યા કરું. હવે બોલતું મને वो कह रही है कि अब तो मुझे श्रृंगार में तो इतना आनंद आ रहा है ना कि श्रृंगार में से तो मुझे बाहर निकलने का मन ही नहीं होता। क्योंकि एक बार ऐसी घटना घटी थी हमारे यहाँ। तो मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ मुझे गांव जाना था और मेरे हस्बैंड अकेले ही यहाँ थे। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को 2 दिन के लिए खाना खिलाया था, एक हमारा सुंदर साथ के भाव से और एक पड़ोसी के नाते से। लेकिन मुझे पता था कि ये पड़ोसी नहीं है, ये तो मेरी एक लाडली सखी है, जो उसको ये अवसर मिला है कि राज जी ने मेरे जाने के बाद उसको एक खाना खिलाने का, जैसे अमलावती ने मेरे सूरत के सुंदर साथ को खिलाया था ना, तो उसी तरह का एक भाव मेरे दिल में था। तो मैंने सोचा कि मेरे सुंदर साथ को तो रुपयों और धन संपत्ति से मैं कभी नहीं तोलूंगी, क्योंकि उस रूह के अंदर राज्य की एक ऐसी चाहत थी। तो मुझे लगा कि क्यों मैं उसको मेरे पिया जी को ही दे दूं। तो मैंने उसको एक सागर की श्रृंगार की स्वामी जी की टीका दी कि वो धन तो इतना अनमोल है कि वो इस संसार के धन के सामने तो कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो अनमोल धन की तुलना कभी ये तुच्छ संसार की संपत्ति से नहीं की जा सकती है। तो ये वाणी को दी मैंने उनको। और एक बार कहा, सखी आप बीतक भी ले लो अपने घर। तो उन्होंने बीतक की टीका भी स्वामी जी की ले ली। और अचानक से एक दिन कहा कि सखी मुझे तो राज्य पधराना है अपने घर, तो मैं क्या करूं। तो मैंने कहा, अरे सखी विचार नहीं करना है, तुम्हारे दिल में आज ही ये विचार आया है तो तुम अभी भी संकल्प करके, जब हमारे यहाँ गुरुवार होता है, तो मैंने सारी सखियों को बताया कि सखी हम इस सखी के घर अपने वाजते गाजते सेना को लेकर, हमारी जैसे मेरे पिया जी पन्ना जी में पहुंचे थे तो छत्रसाल ने किस तरह से सेवा की थी, पावड़ा बिछाया था, तो मेरे घर से राज्य लेकर हम उस सखी के घर में आए और उस सखी के घर में पधराया। और उसको इतना आनंद आता है कि जो भी सखियां मेरे घर आती है ना, ज्योत्सना दीदी आती है, अशोक बेटा आता है, कैलाश दीदी आती है, सारे सुंदर साथ जितने जितने मेरे घर आते हैं ना, तो वो बोलती है मेरे घर में तो पहले लाना उसको। तो वो भी उसके घर में लाकर सब सुंदर साथ की सेवा का आनंद लेती है। अरे वाह सुंदर साथ जी, आपने देखा। और वो इतनी इतनी भीगी, उनके उनके पास शब्द से ज्यादा अश्रु हैं सुंदर साथ जी। उनके उनके जो शब्द है ना वो इतने भीगे हुए हैं, वो बोल नहीं पाती, वो आंखों से बोलती हैं, वो नेत्रों से बोलती हैं। जब उनसे मिला भी जाए, मैं भी उनके घर गई थी, प्रफुल्ला बेन के घर गए, तो ये अपने घर भी बिल्कुल जैसे कमलेश भाई के सामने प्रवीण भाई जी का घर है ना, वैसे ही प्रफुल्ला बेन के सामने इनका घर है, हमारी दया बेन का। अति सुंदर। और ये ऐसे बिछ जाते हैं। और सुंदर साथ जी, मैंने तब भी देखा था इनके पास कोई शब्द नहीं था,
कोई बात नहीं की, पर आंसू झरझर बहते जा रहे थे। ये नेत्रों से बोलती हुई हमारी सखी जो है ना, इनका दिल भी और अंदर तक भिगोया हुआ है इन्होंने स्वयं को। और ये दज्जाल आने का भी पर्पस है, क्योंकि धनी चाहते हैं आप और अंदर तक चली जाएं, क्योंकि वो व्याकुल हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तभी ये आया करता है सुंदर साथ जी। और जब आप उससे लड़के खड़ी हो जाएंगी ना, तो आप स्वयं महसूस करेंगी कि मेरा बल कितना बढ़ चुका है और मैं पिया के दिल के और कितनी करीब जा चुकी हूँ। अति सुंदर, अति प्यारी सुंदर साथ जी, ये यात्रा श्रीमद् भागवत से होती हुई श्री कुलजम वाणी तक कैसे ये यात्रा भीगती हुई पहुंचती है, अश्रुओं से भीगती हुई ये यात्रा पहुंचती है, ये सखी हमें बता रही हैं कि जब भाव अंदर भरे होते हैं ना, बोलने की जरूरत नहीं होती, वो पहुंच जाया करते हैं अपनी आंखों के माध्यम से। आप और क्या बताना चाहते हैं दयाबेन? खुलकर बताइए, हम सबको समझ में आती है। બસ મને આમાંથી આનંદ જ આવે છે. હવે હું આટલામાં પ્રફુલ્લાજી પાસે બેસીને સત્સંગ સાંભળીશ અને હું મારું જે ચાલતું છે એ બોલ્યા કરીશ ને સાંભળ્યા કરીશ. अरे वाह, बस मुझे आनंद आता है सुंदर साथ जी, और उनको कुछ नहीं पता। एग्जैक्टली प्रवीण भाई जी बताएंगे। बहुत सुंदर। ऐसी ऐसी यात्रा हम सबकी हो सुंदर साथ जी, हम भी भीगे रहें, हमसे पहले हमारे नैन बोलने लग जाएं। और क्या चाहिए, पिया जी के विरह में ये नैन बहते रहें, और जब ये बाह्य नैनों का बहना बंद हो जाए तो अंदर के नैन बहा करें। बहुत सुंदर दयाबेन, आपके चरणों में जितने प्रणाम करूं उतने कम है। सूरत की सखियों से बहुत कुछ लेना है सुंदर साथ जी हमने। प्रवीण भाई जी। हाँ, वो लास्ट में बोलते हैं कि प्रफुल्ला बेन से मैंने ज्ञान तो लिया, ज्ञान लेने के बाद ये भी बस मेरे को आनंद ही आ रहा है, आनंद के सिवा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो उसका स्टेज बदल गया है, हमारा तो बदला नहीं है अभी तक किसी का भी। अरे वाह, ये ट्रांसलेशन में नहीं था भाई। हाँ, वो नहीं था, वो मैंने बोल दिया वो। प्रणाम जी, अति सुंदर। और अब ये बताइए कि आपको जूम में जुड़ के कैसा लगता है दयाबेन? आप जुड़ पाते हैं कभी कभी? બહુ બહુ સરસ લાગે. ये वो तो समझ कहती में आ है गया कि भाई। देखिए मैं कभी कुछ बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं उसे जबरदस्ती से बोलवाती हूँ, क्योंकि इसका नाता एक रूह का नाता बन गया है। तो मैं बोलती हूँ कि आप भावों में भी आओ और भाव में भी आप बोलो, क्योंकि आप बोलोगी तो आपके अंदर से ये सारा डर निकल जाएगा और आपको एक इतना बल मिल जाएगा। तो उस दिन भाव में भी उसको मैंने बोलाया, और दूसरी बार मैंने कहा मीठी पतिया तो आपको करनी ही है, क्योंकि आप जो हम सुंदर साथ को वो संदेश देने जा रही हो, तो क्या मेरे लिए आप इतना नहीं कर सकती हो? तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं मीठी पतिया तो करूंगी, लेकिन मुझे हिंदी बोलना नहीं आता, और वो बोलती है वो मैं समझ भी नहीं पाऊंगी। तो मैंने कहा आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं, मैं आपके पास ही बैठूंगी और आपके सारी बातें मैं भी बताऊंगी आपके साथ साथ। तो आज भी वो मना तो कर ही रही थी, लेकिन मैंने कहा कि आपके यहाँ इतने बड़े एक तेजस्वी महापुरुष रह रहे हैं, फिर भी आपको उनसे ये मार्गदर्शन नहीं मिला। तो मैंने कहा आपको ये मार्गदर्शन जिससे मिला है, आप ध्यान में तो वो पहले से ही डूबी हुई थी, लेकिन ध्यान के माध्यम से उनको वो नहीं मिल रहा था कि मुझे क्या, जो अंधकार ही अंधकार दिखता था ध्यान में। तो वो एक दिन हमारे यहाँ उसके घर पर रहने के लिए आए थे। तो मैंने कहा उसको कि मैं और वो भगत जी सामने बैठे, और उसको मैंने बताया कि भगत जी ये आपको साक्षात्कार हुआ है। तो वो परमात्मा, बहुत आवाज आ रही है अंदर में। कि पीछे से कुछ आवाज आ रही है। आवाज। तो उन्होंने कहा मुझे बहुत, ये भगत जी ने सब कुछ मुझे बताया। तो मैंने उससे सारी बातें की कि ये राज्य ये है, परमात्मा ये है। तो वो ये मानते थे, तो वो ये मानते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो जो कुछ हुआ है ना, तो वो ठीक ही हुआ है, मैं अब आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ। तो वो उसके परिवार को भी यही कहते थे
कि तुम क्यों भाग दौड़ कर रही हो, क्यों इसी में भागती चली जाओ, घर बैठे ही सब कुछ मिल सकता है। तो उसके घर में ऐसा होता है उसके हस्बैंड ने कि तो तुम्हें कुछ मंदिर में कुछ सत्संग में जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसको अंदर से जो मिला है ना, तो वो उसको एक अंदर से तड़प होती है कि मैं भी कुछ पाऊं, मुझे भी राज्य को पाना है। राज्य जो है वो सारा ब्रह्मांडों के मालिक है, उसके एक इशारे से अक्षर ब्रह्म करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। तो मुझे ये शुद्ध हो गई है, तो अब मुझे इस ध्यान से नहीं, मुझे अब उससे भी परे जाना है कि मैं ध्यान करती हूँ। लेकिन उन्होंने जो ध्यान का मार्ग बताया, आज भी वो इतने गहरे, उन्होंने बचपन से ही वो भगत जी ने सारा परिवार घर कुछ नहीं, आज भी वो खाते भी हल्का, बिल्कुल हल्का भोजन लेते हैं, दूध लेते हैं। और अब तो उन्होंने अपने घर से पास भी नहीं रहते, वो दूसरे गांव में चले गए। और उसकी जो फार्म हाउस होता है ना, तो उस पर उस लोगों ने उसको एक छोटा सा कमरा बना दिया, और वो उस कमरे में सदा ध्यान ही करते रहते हैं। और एक दिन मुझे बता रही थी कि वहां इसके कमरे से इतना तेज निकल रहा है, तो वहां जो एक आदमी रहता है ने, तो वो बोलता है कि ये साधारण महापुरुष नहीं है, ये तो बहुत बड़े महापुरुष है, आप उसकी पहचान कर लो और उसके चरणों में कभी भी आप दूर नहीं हो। तो वो बोल रहा था, तो उन्होंने मुझे एक दिन बताया। तो मैंने कहा ये सच में है महापुरुष, लेकिन वो बोल रहे थे मुझे तो अभी एक जन्म बाकी है। तो मैंने कहा राज्य की पहचान होती है ना, तो सारे हमारे अंदर के जो जन्मांतरों के संस्कार होते हैं ना, तो वो नष्ट हो जाते हैं और हमारा कोई जन्म नहीं रहता है। जितना भी हमारा जीवन ने नीच कर्म किया है, लेकिन राज्य मिल जाएंगे ने, तो हमें कभी जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमें जन्म से परे कराने वाले हैं। जो साक्षात्कार होता है ना, वो हमारा जीव जितना भी निष्ठुर हुआ हो, लेकिन मैंने कहा उस जीव को कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ना होता है। तो वो जी बोलते हैं मुझे तो वो मेरे सारे कार्य भी कर जाते हैं, और जब मैं अकेला होता हूँ ना, तो मेरी स्थिति ऐसी हो जाती है, तो वो मुझे संभाल लेते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे तो मेरे पिया का जो अंश होता है ना, इसमें ही लेना देना है। तो सखी ने कहा कि आप उसको भी मानो, लेकिन आपके ध्यान में की राह जो बताई है मेरे से पहले, तो आप उस पर चलो। लेकिन अब मैंने जो आपको चितवनी की राह बताई ना, उसी तरह आप ध्यान में डूबी रहो और वाणी मंथन में डूबी रहो। बस आपको और कुछ नहीं करना। जब भी धनी का हुक्म आदेश होगा, तो आपको इतना परिपक्व, मुझे एक बात महर सागर सुनकर तो इतनी अच्छी लगी कि दज्जाल की सेना कितना भी जोर कर ले, लेकिन हमारी कसौटियां जितनी भी अधिक होती है, तो उसके अधिक शोभा हमें धनी देना चाहते हैं ने। तो बस मैं उसी से उसको आश्वासन देती रहती हूँ, कोई बात नहीं, क्या हुआ, चर्चा सुनकर तो हम इतने 20 साल 25 साल हो गए, हमारे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आपने नहीं सुना, नहीं करा, फिर भी आपका इतना दर्द बढ़ा ने, मेरे लिए तो यही काफी है। जी बहुत सुंदर। और एक बात मैं लास्ट दयाबेन आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके दिल में डर था कि मैं बोल नहीं पाऊंगी, मुझे समझ नहीं पाएंगे, मैं समझ नहीं पाऊंगी, तो गुजराती समझने वाले और प्योर गुजराती या फिर नेपाली या कोई भी भाषा समझने वाले और बोलने वाले सुंदर साथ को आप क्या संदेश देना चाहोगे? क्या उनको यहाँ आना चाहिए और बोलना चाहिए? समझने वाले समझाने वाले पिया जी तैयार कर देंगे, बताइए दया सबको बहन। अपने दिल की बात कहनी चाहिए, बोलो। सबको अपने दिल की बात कहना चाहिए। अरे वाह अरे वाह, इसको गुजराती में ट्रांसलेट कीजिए अब प्रवीण भाई। દિલની વાત કેવી જોઈએ આવીને. या दिलनी बात केवी जोइए। अरे वाह, बहुत सुंदर। सबको अपने दिल की बात यहाँ कहनी चाहिए और सुंदर साथ को उसमें सेवाओं का मौका मिलेगा। इस बार प्रवीण भाई बोले, अगली बार सुरेश भाई बोलेंगे, कभी शीतल जी, कभी मीनाक्षी जी, और कभी हमारी सूरत की सारी सुरताएं, कभी प्रफुल्ला जी, कभी कौशिका जी। हर सुंदर साथ ट्रांसलेशन की सेवा के लिए यहाँ हाजिर है। बिल्कुल ना घबराइए। जो गुजराती बोलते हो, नेपाली सुंदर साथ भी हमारे पास हैं, आप नेपाली बोलते हो, जरूर आकर अपनी यात्रा बताइए। हमारे अनिल भाई जी भी हैं, हमारी अंजू जी हैं,
बहुत सारे सुंदर साथ को सेवा का मौका मिलेगा। बसंत भाई जी भी हैं और बहुत सारे सुंदर साथ। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इससे यही पता लगता है किसी भी धर्म ग्रंथ से आप जुड़े हुए हैं, किसी भी धर्म से जुड़े हैं, संप्रदाय से जुड़े हैं, या फिर किसी भी पंथ से जुड़े हैं। श्री प्राणनाथ जी की वाणी सबको एक करते हुए, सबका एकीकरण करते हुए उसी की तरफ इशारा कर रही है जो आपके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो बिल्कुल गुरेज ना कीजिए। आइए एक बार पढ़कर तो देखिए कि प्राणनाथ जी हैं कौन और उनकी पहचान क्या है और उनको क्यों पहचानना चाहिए। बहुत सुंदर दयाबेन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जब भी कोई प्रवाही जो अब सुंदर साथ बन चुके हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने जरूर अपने धर्म ग्रंथ में कोई ना कोई बात ऐसी पढ़ी होती है कि पता लग जाता है, देखो शब्द आगे चला। जैसे ही स्वरूप साहब से जुड़ते हैं, जैसे ही कुलजम वाणी से जुड़ना शुरू करते हैं, जरूर पार की बान उनको मिलती है और अपनी ओर खींच लेती है। ये सबके साथ कॉमन रहा जो अभी तक मीठी बत्तियां हमारे साथ करके गए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।